عنوان صالح الدین ایبی عظیم فرہادیہ اور اسلامی رہنمائی کا مظہر صالح الدین فرہادیہ اور اسلامی رہنمائی کا مظہر کے طور پر مشہور ہیں، جن کی ورثہ کو وقتاور سرحدوں کو پار کرتا ہے۔ 2ویں صدی میں پیدا ہونے والے صالح الدین یوسفہ بنائے بکی زندگی کو اس کے دین، شرافت اور اسلامی دنیا میں اتحاد کی تلاش میں مستقل ثابت کیا۔ ان کی شاندار فوجی پوری تحریری استکاری کی فہما اور عظیمہ خلاقی کردار نے انہی حیات میں پھیور تاریخ کی داستان میں بھیستائش حاصل کی۔ صالح الدین کا نام بڑھتے ہوئے تاریخی دور میں بات ہوئی جب مسلمانوں اور کرسیڈر فوجیوں کے درمیان جھگڑے کا دور تھا۔ اس پیچیدہ ماحول میں صالح الدین ایک متحد کرنے والے عنصر کی طرح سامنے آئے، قوت کو جمع کرتے ہوئے مسلمان فوجیوں کو کرسیڈر فوجیوں کے خلاف جلوس دینے۔ ان قیادت کے دوران برصغیر کی جنگ حطین میں، جہاں انہوں نے گائے آفلوسیگ ان کی قیادت میں کرسیڈر فوجوں کو ناقابل مکر شکست دی، ان کی دانائی اور فوجی استعداد کا اظہار ہوا۔ بعد میں بیطال مقدسہ کی کرسیڈر کنٹرول سے آزادی نے صالح ورانہیں ایک طور پر تسلیم الدین کے قدرتی قوت کی ثابتی دی، اک مضبوط رہنما کیا۔ صالح الدین کی قیادت کا احسان کی عدالت اور رحمدلی کے اصولوں کی پابندی تھی۔ جنگ کی حرارت میں بھی صالح الدین نے ایک اخلاقی انسان بنے رہنے کی پرواہ کی، جوانیں ان کے مخالفین سے ممیز کرتا تھا۔ ان کی بار شہری حالت میں ایسی شرائط پیش کی گئیں کہ وہ ہنرماور اعلیٰ موقع پیش کرتے۔ ان کے قیدیوں کے ساتھ برتاؤ، جیسے کہ بیطال مقدس کے قبضے کے بعد بغیر رنسمہ کے آیاں چھوڑنے کی عدالت پردازی کی رحمدلیہ اور اخلاقی رویے کا مظاہر ہے۔ صالح الدین کی سیاستی فہم کے ساتھ ساتھ کی ڈپلومیٹک ذہانت نے علاقائی سیاست کی منظر نامہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ رائے کے متنوع معاشرتی نظام کی انتظامی کارکردگی کے ذریعے ان کی احترام اور انسجام کی ترکیبان کے کامیاب ہونے کے بعد پہلی صلیبی جنگ ایک تفصیلی تحقیق تعارف۔ پہلی صلیبی جنگ قرون وسطی کی تاریخ کے سب سے اہم واقعات میں سے ایک ہے، جو مغربی اور عیسائیوں کی طرف سے مقدس سرزمین کو مسلمانوں کے قبضے سے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے شروع کی گئی مذہبی طور پر حوصلہ افزائی کی گئی فوجی مہمات کے ایک سلسلے کا آغاز ہے۔ یہ مضمون پہلی صلیبی جنگ کی تفصیلی تحقیق فراہم کرتا ہے۔ اس کی ابتدا اہم واقعات، شرکاء اور دیر پا اثرات کا جائزہ لیتا ہے۔ پس منظر اور ابتدا۔ پہلی صلیبی جنگ کی جڑیں 9ویں صدی میں تلاش کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ مغربی یورپ نے مذہبی جوش اور توسیع کے دور کا تجربہ کیا۔ 1295 میں کونسل آف کلرمونٹ میں پوپ اربن دوم کی صلیبی جنگ کی کال نے مہم کے لیے اتپریرک کے طور پر کام کیا، عیسائیوں پر زور دیا کہ وہ ہتھیار اٹھائیں اور یروشلم کو مسلم حکمرانی سے آزاد کرائیں۔ اربن تا کی تقریر نے مذہبی، سیاسی اور اقتصادی محرکات کا استعمال کرتے ہوئے شورویروں، سپاہیوں اور عام لوگوں کے درمیان صلیبی جنگ کے لیے حمایت کو بڑھاوا دیا۔ عوامی صلیبی جنگ۔ اس سے پہلے کہ مرکزی صلیبی فوجیں مقدس سرزمین کے لیے روانہ ہوں، ایک مقبول تحریک جسے عوامی صلیبی جنگ کہا جاتا ہے، جس میں کسانوں اور نچلے طبقے کے افراد شامل تھے، نے اپنی بدقسمت مہم کا آغاز کیا۔ کرشماتی مبلغین جیسے پیٹر دی ہرمیٹ اور والٹر سانز ایور کی قیادت میں عوامی صلیبی جنگ کو یورپ اور ایشیا مائنر سے سفر کرتے ہوئے مشکلات، مظالم اور قتل عام کا سامنا کرنا پڑا۔ پرنسپل صلیبی جنگ 9 مرکزی صلیبی فوجوں نے، جس کا اہتمام یورپی اشرافیہ اور فوجی رہنماؤں نے کیا، نے 1296 کے آخر میں مقدس سرزمین کی طرف مارچ شروع کیا۔ صلیبیوں کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سخت موسم، سپلائی کی کمی اور راستے میں مقامی آبادیوں کے ساتھ جھڑپیں شامل ہیں۔ ناکامیوں کے باوجود صلیبیوں نے لیونٹ کے کلیدی شہروں اور علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، بشمول نیکیا، انتاکیہ اور ایڈیسا، اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہوئے اور رفتار حاصل کی۔ یروشلم کا محاصرہ۔
पहली सलीबी जंग का अरूज यरूशलेम के मुहासरे के साथ आया, जैसा कि सलीबियों ने जून 1919 में शहर का मुहासरा कर लिया था। एक वहशियाना और तवील हमले के बाद सलीबियों ने यरूशलेम की दीवारों को तोड़ा और मुसलमान और यहूदी बाशिंदों का खूनी कत्ल आम शुरू किया। यरूशलेम पर कब्जा सलीबियों के लिए एक अहम फतह का निशान है, जिसने मुसलमानों के कब्जे से मुक़द्दस शहर को दोबारा हासिल करने के अपने बुनियादी मकसद को पूरा किया। 5. सलीबी रियासतों का क़याम। यरूशलेम पर कब्जे के बाद सलीबियों ने लीवेंट में कई सलीबी रियासतें कायम कीं, जिनमें रियासत यरूशलेम, काउंटी ऑफ तराबलस, इंताकिया की प्रिंसिपलिटी और काउंटी ऑफ एडिसा शामिल हैं। ये रियासतें जागीरदाराना और ईसाई इदारों के इम्तिजाज से नुमायां थीं, जो यूरोपी शराफत और मजहबी अहकामात के तहत चलती थीं। 6. मिराथ और असर। पहली सलीबी जंग के ईसाई और मुस्लिम दोनों मुआशरों के लिए गहरे और दूररस नताइज थे। इसने मशरक और मगरब के दरमियान सदियों के तनाज़ात और दुश्मनी को भड़का दिया, मशरक वस्ता और यूरोप में मजहबी, सकाफती और सियासी हरकियात को तश्कील दिया। सलीबी जंगों ने एक पायदार मिराथ छोड़ी, जिसने यूरोपी ताकत के अरूज, ख्यालात और सामान के तबादले और एक अलग मगरबी यूरोपी शनाख्त की तरक्की में हिस्सा लिया। नतीजा, पहली सलीबी जंग कुरून वस्ती की तारीख में एक अहम वाक़या के तौर पर खड़ी है, जो मजहबी जोश, सियासी अज़ाइम और अस्करी सलाहियतों के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करती है। इसका असर सदियों में गूंजता रहा, जिसने मगरबिया और मशरकियत हज़ीबों की तश्कील किया और इंसानियत की इज्तिमाई याददाश्त पर नकोश छोड़े। पहली सलीबी जंग की पेचीदगियों और बारीकियों को समझना कुरून वस्ता की दुनिया में ईमान, ताकत और फतह के दरमियान तामुल की हमारी तारीफ को तक़वियत बख्शता है। दूसरी सलीबी जंग। एक गहराई से तज्ज़िया तारुफ। दूसरी सलीबी जंग, जो ईस्ट वॉलफोर्ड सेल में शुरू हुई, कुरून वस्ती की तारीख में एक अहम महक की नुमाइंदगी करती है, क्योंकि मगरबी यूरोपीय ईसाइयों ने मुसलमानों के कब्जे से यरूशलेम और दीगर मुक़द्दस सरज़मीन के इलाक़ों पर दोबारा दावा करने की कोशिश की। यह मज़मून दूसरी सलीबी जंग की तफसीली तहक़ीक़ पेश करता है। इसके इब्तिदा, अहम वाक़आत, शिरका और वसीअतर तारीख़ी अहमियत का जायज़ा लेता है। पस मंज़र और इब्तिदा। दूसरी सलीबी जंग गिरियन फ़ौरजात में सल्जूक तुर्कों के हाथों काउंटी एडिसा के गिरने के रद्दअमल में शुरू की गई। एडिसा के नुकसान की खबर ने गम और गुस्से को जन्म दिया और मुक़द्दस सरज़मीन में ईसाई मफादात के दिफा के लिए एक नई सलीबी जंग का मुतालबा किया। पोप यूजीन III और क्लियरवाक्स के सेंट बर्नार्ड ने सलीबी जंग को फ़रोग़ देने और मंज़म करने में अहम किरदार अदा किया। मगरबी यूरोपी हुक्मरानों और शराफत के तक़वा और जंगी जज्बे की अपील की। क़यादत और शिरका। दूसरी सलीबी जंग ने मुमताज़ यूरोपी बादशाहों और रईसों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जिनमें फ़्रांस के बादशाह लुईस तैसेथ और जर्मनी के शहंशाह कॉनराड थाई शामिल थे, जिन्होंने इस मुहिम की क़यादत की। मुख्तलिफ यूरोपी दस्ते, जिनमें शूरवीरों, सिपाहियों और आम लोगों पर मुश्तमिल था, सलीबी जंग में शामिल हुए। मजहबी जोश, रूहानी इनामात के वादों और मशरक में ज़मीन और दौलत के इम्कानात से मुतासिर हुए। फ़ौजी महमात। सलीबियों को अनातोलिया के रास्ते मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ सफ़र करते हुए लॉजिस्टिक चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन्हें सल्जूक अफ़वाज के हाथों शिकस्तों और नाकामियों का सामना करना पड़ा, जिसमें लन फोर्ट 7 में डोरिलीम की जंग भी शामिल थी। इब्तिदाई मुश्किलात के बावजूद सलीबी लीवेंट तक पहुंचने और दमिश्क और इस्कालोन समेत मुसलमानों के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों के ख़िलाफ़ हमले शुरू करने में कामयाब हुए। 4. नाकामी और इख्तिलाफ। सलीबी रहनुमाओं के दरमियान अंदरूनी तकसीम और तज़वीराती इख्तिलाफ़ात ने मुहिम की तासीर में रुकावट डाली। लुईस सेथ और कॉनराड थाई के दरमियान तनाज़ात, नीज़ यूरोपी और बाज़नतीनी इत्तेहादियों के दरमियान तनाव ने इत्तेहाद और हम आहंगी को नुकसान पहुंचाया।
इन्ना फोर्ट ठाट में दमिश्क का मुहासरा नाकामी पर ख़त्म हुआ क्योंकि सलीबी शहर पर कब्ज़ा करने में नाकाम रहे। फैसलाकन फतह की कमी और लीवेंट में सख्त हालात ने सलीबियों में मायूसी और हौसले को पस्त किया। मेराथ और असर। दूसरी सलीबी जंग नाकामी पर ख़त्म हुई। एडिसा पर दोबारा कब्ज़ा करने या मुक़द्दस सरज़मीन में दीगर अहम इलाक़ाई फ़वाइद हासिल करने के अपने बुनियादी मकासद को हासिल करने में नाकाम रही। सलीबी जंग की नाकामियों और मायूसियों की वजह से मग़रबी यूरोप में रूह की तलाश और खुद शनासी हुई, जिसने इलाही फ़ज़ल, क़यादत और हिकमत अमली के बारे में सवालात को जन्म दिया। दूसरी सलीबी जंग ने ईसाई मुस्लिम ताल्लुकात के लिए देरपा असरात मुरतब किए, मशरिक़ और मग़रब के दरमियान कशीदगी और अदम एतमाद को बढ़ाया और कसीरल कौमी फ़ौजी महमात को मरबूत करने के चैलेंजों को उजागर किया। नतीजा: दूसरी सलीबी जंग अगरचे बाल आखिर नाकाम रही, सलीबी जंगों और क्रूनोस्ता के यूरोप की तारीख़ का एक अहम बाब है। यह सलीबी जंग की पेचीदगियों और चैलेंजों के साथ साथ मज़हबी जोश, सियासी अज़ाइम और फ़ौजी हिकमत अमली की मिसाल देता है। दूसरी सलीबी जंग के इब्तिदा, वाक़ता और इसके बाद का जायज़ हलीने से हम क्रूनोस्ता की सलीबी जंग की हरकियता और मग़रबी और मशरक़ियत हज़ीबों पर उसके देर पासरात के बारे में कीमती बसीरत हासिल करते हैं।